Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. 1.5 टॉपिक नंबर कोई बताएगा? सिलेबस मैंने शेयर किया है। जिनका आज नया है बैच, मतलब जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, उनके पास सिलेबस है? एक बार बता दें। So, general guidelines of yogic practices, 1.5. हम्म जनरल गाइडेंस ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस, यस। I'm asking about, sir, today is first class. Okay. D. Vaishnavi. I would like to request all of you to rename yourself if your name is not the name that is showing on the screen. Why? Because it might affect your attendance. So make sure that your name is written exactly the way you have registered it. अपना नाम रीनेम कर लें अगर आपका नाम वो नहीं है जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। ठीक है, अटेंडेंस की खातिर अपना नाम रीनेम कर ले। अब कुछ जरूरी जानकारी मैं आपको दे दूं। I'm going to give you some important information. The total course duration is 15 class or 3 weeks. In total, 15 theory session and 15 practical sessions will be taught. Even in the theory session, there will be some practical aspects, but that will cover under theory session. 15 theory session Monday to Friday and 15 practical session Monday to Friday. These practical sessions have separate timings. You can check it in the description of the group. 15 घंटे मंडे टू फ्राइडे, डेली एक एक घंटे आपका थ्योरी सेशन है और डेली एक एक घंटे आपका प्रैक्टिकल सेशन है। डिस्क्रिप्शन, आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल सेशंस के टाइमिंग क्या क्या है। और थ्योरी सेशन के जो टाइमिंग्स है वो 7 बजे सुबह में और 7 बजे शाम में, बस यही दो टाइमिंग्स है। ठीक है। एग्जाम भी होता है, एक छोटा सा क्विज होता है आपका, बिल्कुल जब एंड होने वाला रहता है। एक छोटा सा क्विज हम आपको देते हैं, उस क्विज को आपको क्रैक करना होता है और बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपने अच्छे से क्लास अटेंड करी है, बहुत ही सिंपल हम देते हैं। तो बस फिर से सर वो क्विज क्लास के दौरान होता है या उसके बाद कोई ऐसे टाइमिंग्स मिलेगा उसमें हमें वो क्विज पेपर सॉल्व करना है?
कैसा रहता है? ये आपको क्लास जब खत्म हो जाती है तब देना होता है। ओके। जब आपका सेशन समाप्त हो जाता है, जब 3 हफ्ते पूरे हो जाते हैं, तब देना होता है। ओके सर। एंड सबसे अ, अगर मान के चलो आप किसी तरह से अटेंडेंस पूरा नहीं कर पाए, in case you're not able to, because 80% attendance is compulsory to get your certificate. In case you are not able to achieve the attendance, then you can watch the recorded sessions. And once you watch the recorded sessions, you can fill your attendance. For that, you can take help from Ria Jain. Her number is already visible in the group. You can go to, I mean, you can check the group member description, and there you will find Ria Jain. Or you can ask at the rate Ria Jain, and any question you have related to notes or recordings, and she will reply. Okay. Any other question? किन्हीं का कोई और क्वेश्चन? So what we have to do if we have to join a further teacher training program? You just need to contact Ria, and then she will tell you. Okay, sir. I didn't understood. I think I didn't understood your context. Means if I want to join 200 hours plus teacher training program, Mhm. which this Shambha Yoga is offering. Mhm. So what I have to do, I had to directly contact to Ria ma'am or to this website I need to fill the form again. No, no. Consult Ria ma'am. That will be a more faster process. Okay, sir. Okay. So consult. I mean, connect to Ria, and she will give a more faster process. D Vaishnavi. For every week, Vaishnavi ji, we have our own uh, roadmap. So we are not going to start from 1.1, but yes, all the topics will be covered as the topics are divided according to every week's roadmap. So, shall we proceed? Shall we proceed? Yes, आगे sir. बढ़े? ओके। अच्छा, जनरल गाइडलाइंस फॉर योगिक प्रैक्टिसेस से समझते हैं आप क्या? मतलब, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जनरल गाइडलाइंस फॉर योगिक प्रैक्टिसेस? Anybody? General guideline for yogic practices? No one. Rules to follow. Prepare our body and mind for yoga. Sir,
जो और প্র্যাকটিসের মধ্যে যেমন जैसे धौती है, प्राणायाम है, हम्म, जो आसन जो है, ये तो योगिक प्रैक्टिस में है ना। प्रत्याहार प्राणायाम ये सब तो योगिक प्रैक्टिस में ही पड़ता है। हम्म, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा, नियम, आसन। हम्म। अच्छा, गाइडलाइन का मतलब क्या होता है? So preparing the body for breath awareness on an empty stomach, basically, for to avoid strain and listening to your body. अनुशीलन का रेगुलर योगिक प्रैक्टिस। हम्म। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। बोल रहे थे सर कि मैं अभी ज्वाइन किया हूँ इसलिए कि 24 को स्टार्ट हुआ था। तो 14 को समाप्त हो गया है ना क्लास। तो ये जो क्विज वाला कंटेस्ट है ये कब होने वाला है? मतलब कैसे पता चलेगा किस दिन होगा? आप एक बार दीपक सर को मैसेज कर दीजिए, वो बता देंगे। दीपक सर का नंबर कौन सा है पता नहीं है मुझे। ग्रुप एडमिन्स में से वो भी एक है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक ठीक यू है। सर। ओके। और anybody having any idea about what is guideline for anything? Time, practice, place, clothing, warm-ups. Yes, Dimple Sharma. Yes, you are correct. So the overall roadmap. Okay, overall roadmap for yogic practice. अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनका कोर्स अभी खत्म नहीं हुआ और उनको हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है? हाउ मेनी ऑफ यू are here whose course is not finished yet and still they have some uh, problem if I speak in Hindi because they don't understand? Anybody? Anyone? Okay. Chiteshji, your course didn't finish yet? Okay, let's start. Sir, already I finished. will just. I joined at 24th November, but I Okay. didn't get any information yet. Okay, you didn't got any question. You can ask Deepak sir. He will provide you with the questions. I think this is the second Okay, time sir. you are getting, I mean, to know about this topic. Yes. So they didn't, I mean, because I know you from last 3 weeks, I Yes. believe, and I've even asked you a few questions. That's why I was Yes, sir. confused whether, yes. So those who have joined from 1st of December, their course is still going on. 24th of November, they will just learn things on a repeating mode. Okay, let's make it bilingual. Okay. So the first thing is place of practice. Anybody, any idea? Place of practice? Anyone? Okay, usually, what type of places do we see yogis
practicing yoga? In open प्लेस spaces, जहाँ sir. शांति हो, ज्यादा गड़बड़ ना हो, पॉजिटिव वाइब्स हो ज्यादा। Quiet and clean space. Yeah. Open, clean space. Yes, Preeti ji. Anybody else? और कोई बोलना चाहेगा? किस तरह के स्पेसेस में करते हैं? नेचुरल प्लेसेस, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और शांत If और it's in a room, then ventilated, nicely ventilated areas. nicely ventilated areas, silent areas. साइलेंट है, Yes, correct. निस्तब्ध और साइलेंट एरियाज में, और हाँ जैसे कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो आसपास, कोई हाँ, तनाव ना साइलेंट में ज्यादा। कवर हो हाँ जाता वो, हाँ हाँ हाँ, साइलेंट में वो कवर हो जाता है। साइलेंट में कवर हो जाता है। तो आई थिंक आप सब समझ गए। देखिए, बहुत कॉमन सेंस लगाने वाली चीजें हैं यहाँ पर, जो हमको बस अप्लाई करना और कुछ नहीं करना है। और जितना इंटरेक्ट करेंगे, जितना ब्रेनस्टॉर्म करेंगे ना, उतना अच्छी लर्निंग होगी। द मोर यू ब्रेनस्टॉर्म, द ग्रेटर लर्निंग यू विल हैव। ओके, ओके, नेक्स्ट। ये बताएं कि खाना खाने का गैप कितना होना चाहिए आइडियल? 2 to 3 hours, 3 hours। sir. 3 hours. 3 hours. Anybody else? So Three please to repeat four the hours. question. 8 hours। हाँ, Please repeat the 8 hours, question. 8 hours, 8 घंटे। गैप कितना होना चाहिए खाना खाने का योगा करने से पहले? मिनिमम 3 hours। 3 hours, सर। 3 hours। थ्री So it's आवर्स best in the morning before any meals, actually, ओके, on an ओके, empty stomach. ओके, ओके, ओके। तो सभी लोगों को पता है कि एम्प्टी स्टमक और 3 to 4 आवर्स का गैप होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जो गैप होना चाहिए वो वही 2.5 से 4 आवर्स के बीच का गैप होना चाहिए। बेस्ट है सुबह के टाइम पर एम्प्टी स्टमक। ओके, अच्छा, टाइम क्या होना चाहिए? टाइम क्या होना चाहिए? मिनिमम इतनी 15 देर में तो मिनट्स चैट टू वन जीपीटी आवर बता देता है। मिनिमम 15 minutes to 1 hour। मिनिमम 15 minutes to 1 hour? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ किस टाइम पर योग करना चाहिए? मॉर्निंग एट डॉन। Morning. मॉर्निंग के टाइम पर, Morning. बिल्कुल। Morning 5 to 9, within 5 to 9 a.m. And evening 5 to 7 a.m. 8 p.m. 7 p.m. Sorry. करेक्ट, करेक्ट। आफ्टरनून में भी कर सकते हैं ना, 3 से 4 बजे तक ऐसे। वो भी टाइम बेस्ट रहता है। प्रेफरेबल नहीं है वो, अगर स्क्रिप्चर्स के हिसाब से देखें तो प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। तो मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये दो टाइम प्रेफरेबल है, आफ्टरनून प्रेफरेबल नहीं है। चलिए, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड। Light, light clothing, sir. Easy to maneuver And and not loose and tight. comfortable Shoes are clothes. nice, comfortable. हम्म 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 हम्म, हम्म,
कंफर्टेबल होना चाहिए। यस, कंफर्टेबल होना चाहिए, लूज होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, है ना। बहुत टाइट क्लोथिंग पहनकर नहीं करते योगा, लेकिन आजकल तो हम टाइट क्लोथिंग करके ही पहनते हैं, है ना। आजकल तो हम टाइट ही पहनते हैं पर नहीं पहनना चाहिए टाइट, एकदम हल्का पहनना चाहिए। अच्छा ठीक है। और ये बताइए सरफेस के बारे में, कैसा सरफेस होना चाहिए। ऐसा पकड़ के चलिए, योगा मैट लीजिए, योगा मैट आपके लिए एकदम परफेक्ट सरफेस है। सर, ठीक है। हम्म। जो लोग जो लोग जैसे बाघ या जैसे हरिन के उसके खाल के ऊपर बैठ के ध्यान करते थे, इसका मतलब क्या है? अच्छा, वो हमारा मुद्दा नहीं है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए, तो योगा मैट आपके पास होना चाहिए एक, वो आपका सरफेस है, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, आपके पास बस एक योगा मैट होना चाहिए अच्छा सा, बस जहां पर आप फिसलो नहीं ज्यादा। अगर बहुत सस्ता वाला योगा मैट लोगे तो शायद फिसलोगे ज्यादा, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का योगा मैट लोगे, नहीं फिसलोगे। फिर हम शुरू करते हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस से, या सूक्ष्म व्यायाम से। वी स्टार्ट फ्रॉम सूक्ष्म व्यायाम और वार्म अप एक्सरसाइजेस, लाइक वेरियस जॉइंट रोटेशंस। हमारे बॉडी में वेरियस वेरियस जॉइंट्स है ना, उसको रोटेट करते हैं। जैसे नी रोटेशन करते हैं, एंकल रोटेशन करते हैं, नेक रोटेशन करते हैं, ट्रंक रोटेशन करते हैं, है ना। तो जितने जॉइंट्स हैं उसको हम रोटेट करते हैं, जो कि पवन मुक्तासन सीरीज 1 में आता है। और भी कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं जिसको हम करते हैं, पवन मुक्तासन सीरीज में भी आता है, और बाकी अदर स्कूल्स ऑफ योगा ने भी बताया है। जब तक हम स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, जब तक हम बेसिक सूक्ष्म व्यायाम नहीं करते हैं, तब तक हम आसन नहीं कर सकते। बहुत लोगों को ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि हम डायरेक्ट आसन कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग तो यहाँ पर डायरेक्ट सूर्य नमस्कार भी करते होंगे। डायरेक्ट ही सूर्य नमस्कार किया होगा, और क्या ही सूर्य नमस्कार किया होगा, ना हाथ नीचे गया होगा ना हाथ पीछे गया होगा है ना, ना हाथ नीचे गया होगा ना हाथ पीछे गया होगा। पैर आगे की ओर थोड़े होने चाहिए थे तो पैर पीछे ही रह गए होंगे, है ना। कमर को थोड़ा सा स्ट्रेच करके सिर ऊपर करना होगा तो कमर में दुख गया होगा, तो ऐसा होता है तो इसीलिए एक एक चीज को याद रखिए, एक साथ इकट्ठा बड़ी काम नहीं करने चाहिए, एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम यही काम करता है, ये जो प्रिलिमिनरी प्रैक्टिसेस है ये यही काम करता है। और मैं आपको वो दावे के साथ कह सकता हूँ कि बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी यही गलतियां होती हैं। ऐसा नहीं कि हम ये गलतियां करते हैं, अछूते नहीं है, सारे के सारे जगहों पर यही हो रहा है, ठीक है। तो सूक्ष्म व्यायाम इस गलती से हमें बचाता है। फिर आता है सीक्वेंस ऑफ प्रैक्टिस। अब सीक्वेंस ऑफ प्रैक्टिस में क्या है। अच्छा, कौन बताएगा मुझे सीक्वेंस ऑफ प्रैक्टिस क्या है। इतने दिन से हमने सीक्वेंस ऑफ प्रैक्टिस डिस्कस किया है, जो कि बैच, मतलब पुराने बैच वाले लोग हैं, उनको तो बताया है मैंने। कोई बताएगा। और कोई सीक्वेंस बताएगा।
सर। हेलो। हम्म। हाँ सर, जैसे ओम चैंटिंग करना हम्म। पहले, तो इसके बाद जैसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे ओम चैंटिंग करना, इसके बाद आसन आसन में बैठना, सिटिंग स्टैंडिंग ये सब जो है वो करना। इसके हम्म। बाद प्राणायाम करना। इसके बाद हम्म। मेडिटेशन करना। यही हम्म। तो है तो। So जिसमें Yaman प्रैक्टिकल Pranayam प्रैक्टिकल क्लास में जो दिखाता है ना वही। हाँ, ऐसा है कि सबसे पहले आपने सूक्ष्म व्यायाम किया, बॉडी लूज हुई, उसके बाद फिर आप आसन कर सकते हो। अच्छा। आपने आसन किया तभी जाकर आप प्राणायाम कर सकते हो। हम्म। आपने एक बार प्राणायाम कर लिया तभी जाकर आप मेडिटेशन कर सकते हो। हाँ। ठीक है। अगर आप इस सीक्वेंस में फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। कई सारे लोग प्राणायाम पहले कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, अनुलोम विलोम अगर कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, वो कभी भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका नॉस्ट्रल ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लॉक्ड है तो आसन पहले करो आप। फिर फिर आता है ब्रेथ अवेयरनेस। अच्छा, ब्रेथ अवेयरनेस से बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मतलब क्या होगा ब्रेथ अवेयरनेस? सोचिए। ब्रेथ अवेयरनेस से क्या सोचते होंगे? तो बेथ अवेयरनेस, मैं जो सोच रहा हूँ कि सच्चे क्या, आपको गन में जो सांस प्रश्वास आप ले रहे हो वो आप जानकारी हम्म। में ही ले रहे हो। जैसे आप हम रोज जितना टाइम हम लोग ये ये जो हमारा जो ये सांस प्रश्वास चल रहा है, इसमें क्या है हम्म। ना, तो हम लोग जानते नहीं है, लेकिन जब हम लोग जान के लेते हैं, जैसे प्राणायाम करते हैं, हम सांस ले रहा है सांस छोड़ रहा है, ये ये अवेयर होके ही ब्रेथ लेने से ब्रेथ अवेयरनेस बोलते हैं। हम्म। देखिए, ब्रेथ अवेयरनेस का मतलब है, सबसे पहली बात, आप जो सांसें ले रहे हैं, जिस स्पीड से आप सांसें लेते हो, उसको लेकर पूरी तरह से सचेत हो जाना, जो आपका नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न है। कोई 1 मिनट में 15 बार सांसें भरता है, तो कोई 20 बार भरता है। एक आम इंसान 1 मिनट में 15 बार सांसें लेता है और छोड़ता है। आपको पता है, अगर वो 12 हो जाए तो नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ रियलिटी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अगर वो 9 हो जाए तो फिर एक और डायमेंशन खुल जाएगा। अगर वो 6 हो जाए तो एक और डायमेंशन खुल जाएगा। और अगर वो 3 हो जाए तो एनलाइटमेंट। यानी ब्रेथ में ही सारे सीक्रेट है। जिसने अपने ब्रेथ को जान लिया और जिसने अपने ब्रेथ को स्टेबल कर लिया, वो सब कुछ कर सकता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि करना क्या है। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे अपने प्रैक्टिकल सेशंस में, प्राणायाम के सेशंस में। कई सारे लोगों ने यहाँ पर किया है। आई थिंक नीलेश जी ने किया है, समीर जी ने किया है, प्रीति जी आपने भी किया है ना? हाँ सर किया है। हाँ, तो हम करते हैं ये, आज तो नहीं, लेकिन हम अपने आने वाले सेशंस में आपको कराएंगे रिदमिक ब्रीदिंग। आने वाले सेशंस में हम आपको कराएंगे ब्रेथ अवेयरनेस, प्रैक्टिकली ब्रेथ अवेयरनेस कराएंगे। और तब जाकर आपको पता चलेगा कि सिर्फ सांसों पर ध्यान देने मात्र से सांस कितनी स्लो हो जाती है।
माइंड कितना काम हो जाता है, और ब्रेथ कितना ज्यादा डीप और रिलैक्स्ड हो जाता है। यहाँ पर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जब उन्होंने रिदमिक ब्रीदिंग और ब्रेथ अवेयरनेस प्रैक्टिस करी थी? यस सर। यस, आ, बोलिए। सो मैंने ये 2 बार किया। एक बार मैडम ने करवाया तो, और एक बार आपने। और कल फिर मैंने भी किया और बच्चों को भी करवाया। उनका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वो बहुत शांत हो गए। नींद आई उनको अच्छी। और जो कंसंट्रेशन है वो उसमें बदलाव आया उनको। और मेरा जो अनुभव है उसमें एकदम शांत हो गया मन। बोलने की इच्छा तो नहीं थी उस टाइम। एकदम हम्म रिलैक्स बॉडी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अंदर से रिकवर हो रहा है सब। फील हो जाता है अंदर से। यस यस। तो ऐसे कुछ प्राणायाम है, और मैं आपको शायद दावा नहीं करूंगा, आप लोगों से खुद पूछ लीजिएगा कि शायद उन्होंने कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया होगा सिर्फ प्राणायाम करके, सिर्फ ब्रेथ अवेयरनेस करके इस तरह से उन्होंने कभी फील नहीं किया होगा। इस तरह की चीजें आपको इस दौरान सिखाई जाएंगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ, कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे क्या होता है ना कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारी फिजिकल लिमिट्स होती हैं। हर एज का इंसान का तो एक जैसा बॉडी होता नहीं है, या फिर सेम एज में ही इंसान का बॉडी टाइप भी एक जैसा नहीं होता है ना? जो लोग योगा सीखने गए होंगे कभी, उनके साथ कोई फेलोमेट होगा। हो सकता है कि वो जल्दी सीख गया, आप थोड़े लेट से सीखे, या आप जल्दी सीख गए, वो थोड़ा लेट से सीखा। तो फिर ऐसा क्यों होता है? इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों? देखो, प्रकृति ने हमें तीन त्रिदोष का नाम सुना आपने? हमारे तीन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको डिवाइड किया है: वात पित्त कफ। वात वालों की बॉडी बड़ी जल्दी खुल जाती है। अच्छा, उनको एक्सरसाइज भी कम करना पड़ता है। मेहनत कम करो, शरीर जल्दी खुल जाएगी। जो पित्त वाले हैं, उनको मीडियम मेहनत करनी पड़ती है, उनका भी शरीर खुल जाता है। लेकिन जो कफ वाले हैं, उनका शरीर घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, नहीं खुलता। बहुत इंटेंसिव प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर उनकी बॉडी खुलती है। खुलती उनकी भी है, सबकी बॉडी खुलती है, और कफ वालों की सबसे लेट से खुलती है। लेकिन इन तीनों में से सबसे मजबूत शरीर कफ वालों का होता है। मत उड़ीसा, इतनी जल्दी मत पहुंचिए कि आपका कफ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी नहीं खुल रही, उसके दूसरे रीजन हो सकते हैं। या हो सर सकता मेरे है को कि ना, कॉम्पोजिशन ऑफ वात एंड कफ हो। सर मैं बात पित्त और कफ इस बारे के ना पूरा डिटेल जानता नहीं हूँ। देखो, सुना है कुछ कर, लेकिन मैं ही चाहता हूँ कि इसको ये थोड़ा सा डिटेल थोड़ा सा बोलने से मेरे सुविधा होगा। बात पित्त कफ ये कैसे पता देखिए, चलेगा? ये हमारे कोर्स में मतलब है नहीं, ठीक है? ये हमारे कोर्स में है नहीं, इसलिए मैं अच्छा इस चीज को नहीं कवर कर रहा, क्योंकि 15 क्लासेस है मेरे पास। उन 15 क्लासेस में मुझे जो जो टॉपिक दिए गए हैं, मुझे उसे कवर करना है। हाँ, अगर आप आयुर्वेदा फाउंडेशन के कोर्स कर रहे होते मेरे साथ तो मैं आपको बता देता, लेकिन उसके लिए फिर जैसे दीपक सर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके और उसके बाद फिर एक बैच बनाने की सोच रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड इंडिविजुअल, वो उनको मैसेज कर दे कि सर हमें कुछ थ्योरी वगैरह इनसे सीखनी है, तो उसके बाद फिर वो आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो सर। अब अपने फिजिकल लिमिट्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी फिजिकल लिमिट्स को नहीं समझेंगे तो हम हड्डियां तोड़ लेंगे अपनी, फ्रैक्चर हो जाएगा हमारा। अगर फिजिकल लिमिट्स को नहीं समझेंगे, शायद हम दूसरों की प्रोग्रेस को देखकर अपना हमारा
बुरा लगना शुरू हो जाए कि भाई वो इतनी जल्दी कर पा रहा, हम नहीं कर पा रहे। अरे भाई हम कफ है, हो सकता है वो बात हो। वात वालों का शरीर जितना जल्दी खुलता है उतना जल्दी बंद भी हो जाता है। कफ वालों का खुलता है तो फिर लंबे समय तक खुला रहता है, क्योंकि कफ का नेचर है स्टेबिलिटी, और वात का नेचर है फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन क्विक चेंज। आपने देखा है, कुछ लोग थोड़ा धीरे समझते हैं, लेकिन जब समझ जाते हैं तो पूरा गहराई में समझ जाते हैं। कुछ लोग क्विकली समझ जाते हैं, लेकिन उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। और पित्त वाले मॉडरेशन में। चलिए, फिर हम ध्यान देते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मतलब कोई भी आसन, व्यायाम, प्राणायाम करने से पहले एक बार हमें देख लेना चाहिए कि किसको करना और किसको नहीं करना है। अभी मान के चलो हमको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, या हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कोई है, और हमने कर लिया कपालभाति, तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होगी, तो नहीं करना चाहिए। मान के चलो हमारे स्पाइन में बहुत ज्यादा पेन है ना, बहुत प्रॉब्लम्स है, और हम वैसे आसन कर रहे हैं जहां पर स्पाइन पर थोड़ा ज्यादा असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पश्चिमोत्तानासन करने की कोशिश कर रहे हैं, खुला नहीं है हमारा बॉडी, तो वहां पर तो प्रॉब्लम होगी। हालांकि ये सभी चीजें स्पाइन को स्ट्रेंथन करती हैं, लेकिन तब ना करेंगे जब स्पाइन उस स्थिति में रहे। तो हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जब हम आसन शुरू कर रहे हैं, प्राणायाम शुरू कर रहे हैं, तो किसको नहीं करना है, हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है। ये जरूरी नहीं है। आई हैव अ क्वेश्चन की कपालभाति कर, आप एक बार थोड़ा देखिएगा, आपका बॉडी हीट ज्यादा रहता है क्या निखिल जी? बॉडी हीट ज्यादा रहता है? यस सर। अच्छा। हाँ तो फिर तो आपको नहीं करना चाहिए। सर इसका और कोई रीजन भी होता है? बहुत सारे तो रीजन होते हैं, लेकिन आपका बॉडी हीट ज्यादा होगा। हम्म, आपने जो बताया उसके हिसाब से आपका बॉडी हीट ज्यादा होगा। चलिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम चल रहा है, याद रखिएगा योग जो है ना बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में किया जाता है ना। रिलैक्स्ड होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर नहीं है पॉजिटिव एटीट्यूड, तो फिर क्या होता है? अच्छा, आपको पता है जैसा हम सोचते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज भी वैसे ही होने लगती है। मैं आपके क्वेश्चन पर आता हूँ निखिल जी। आ, कोई बताएगा? थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए आप ही की क्लास है, मेरा क्या है, मैं तो मोनोटोनस तरीके से बोलकर चला जाऊं। सर है ना सवाल कि और एक बार पूछिए सर। एक बार और क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मेरा सवाल ये है कि
अगर हम योग कर रहे हैं और हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं हाँ सर। है ना, रिलैक्स नहीं है, तो फिर हम क्या नुकसान झेल सकते हैं? सर सर उल्टा उल्टा हैप्पी हार्मोन्स का उल्टा हो जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन्स जनरेट होगा। हेलो। आवाज ब्रेक हो रहा है ना, हैंग हो गया वीडियो। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर वीडियो हैंग हो गया आपका, वॉइस भी नहीं आ रहा है। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है, हैंग हो रहा है। म्यूट हो आप सर, अनम्यूट कीजिए। नहीं नहीं, अभी आ पहले। रही है वॉइस? हाँ यस। अभी आ रही है। हाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी चली गई इसीलिए। हाँ सर आपका क्वेश्चन का मैं आंसर दिया, शायद कट गया। स्ट्रेस हाँ, हार्मोन कट गया। जनरेट होंगे, हैप्पी हार्मोन की जगह स्ट्रेस हार्मोन जनरेट होंगे अगर स्ट्रेसली योगा करेंगे। उल्टा नुकसान करेगा, मूड ऑफ करेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। और कुछ? अच्छा, आप में से कितने लोग गौर करते हैं कि जब आपका मूड खराब रहता है तो बॉडी अलग पॉस्चर बनाता है, मूड अच्छा रहता है तो बॉडी अलग पॉस्चर बनाता है? ठीक है। यस सर। ऐसे जब हम लोग आप देखा आसन है। भी करते हो ना, जब आप आसन भी करते हो ना, तो भी ये गलतियां आप कर जाते हो। आसन करते समय भी, क्योंकि आपके अंदर में अलाइनमेंट नहीं है, तो आपके आसन में भी अलाइनमेंट नहीं होता। क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आसन क्या देता है? स्टेबिलिटी, बॉडी को स्टेबिलिटी देता है ना। हम्म। हाँ, मूड भी सही बात है। आसन गलत होने लगता है, आसन गलत होने लगता है, क्योंकि हो सकता है कि हम फोटो क्लिक करें तो पता नहीं चले, लेकिन जो सामने है उसको पता चल जाएगा। तो हमारा बॉडी का जो पॉस्चर है ना, वो भी हमारे मूड से अफेक्टेड होता है। चलिए, नेक्स्ट पर जाते हैं, मेंटल एटीट्यूड, सॉरी, फूड एंड लाइफस्टाइल। योगा में बेसिकली हम किस तरह के फूड को प्रेफर करते हैं, कोई बताना चाहेगा? सात्विक फूड। सात्विक फूड, यस। और सात्विक फूड क्या है? जो जो आसानी खाने से में बचे। आसानी से पच जाए, ठीक वेरी है। और लाइट। आसानी से बचे हैं, जो खाने में शरीर में तनाव ज्यादा जाना हो, जल्दी से हजम हो जाए, आसानी से पच जाए। अच्छा, आप लोग अपना कैमरा क्यों ऑफ रखते हैं? मतलब मुझे जाना पड़ता है पार्टिसिपेंट्स वाले जगह पर क्लिक करके देखना पड़ता है कि अच्छा, ये कह रहे हैं। एक बार कैमरा ऑन करके फिर बोलेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन बता रहा है। ठीक है। जितना इंटरेक्ट करेंगे ना उतना अच्छा रहेगा हमारा। सेशन ज्यादा इंटरेक्टिव होना चाहिए, ज्यादा कंफर्टेबल भी फील करेंगे आप लोग मेरे साथ। यस, गीतिका, प्रियंका। तो यस, The less oily and spicy food. Less oily and less spicy food. Vegetarian food. यस, लेस ऑयली एंड लेस स्पाइसी, इजिली डाइजेस्टेबल, लाइट। ठीक है। लेस ऑयली लेस स्पाइसी नहीं, मतलब इट्स ऐसा समझो कि
पहले हम अपने फूड में सिर्फ घी डाला करते थे, ऑयल नहीं डाला करते थे। हमने ऑयल डालना बाद में शुरू किया है, अपनी प्रकृति के अनुसार। ये भी एकदम करेक्ट है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मिस कर रहे हैं जो मैंने सात्विक डाइट में मेंशन किया था। बिना प्याज लहसुन। प्याज लहसुन तो बासी सीधे खाबर नहीं खाना तामसिक है। चाहिए। जैसे बासी नहीं नहीं, खाबर तो नहीं वो तो खाना है चाहिए, ही, जो सात्विक खाना पुराना खाना खाबर। है, इसलिए हाँ। तामसिक खाना नहीं खाना है। फ्रेश और फ्रेश। अच्छा खाना हाँ, खाना चाहिए। इसी से इसी से थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, फ्रेश खाना खाना है तो खाना तो कब तक फ्रेश रहता है? खाना 5-6 घंटे तक रहता है, इससे Up to ज्यादा नहीं रहती। 3 hours. 2 to 3 3 hours, sir. Up to hours 3 hours you have to यस cook of it. the सुप्रीश जी, cooking. यस सुप्रीश जी। 2 to 3 hours। 3 आवर्स, 3 आवर्स के भीतर खा लेना है, तभी वो हाँ. सात्विक है, नहीं तो वो तामसिक हो ठीक जाएगा। है। ठीक है। हम्म। चलिए नेक्स्ट पर हम जाते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो योग करते हैं ना उनको स्टिमुलेंट्स नहीं खाने चाहिए। स्टिमुलेंट्स क्या क्या है? इवन टी कॉफी आर स्टिमुलेंट्स, लेकिन ठीक है, आज का जो लाइफस्टाइल है, एक बार बॉडी को असर हो गया तो ठीक है। स्टिमुलेंट्स में फिर टोबैको है, अल्कोहल है ना, ये सब अवॉइड करना चाहिए। हालांकि मैंने अपने कॉलेज लाइफ में बिल्कुल चेन स्मोकिंग करी है, लेकिन आई कैन टेल यू कि नहीं करना चाहिए, उससे बाहर आने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, ये जरूर है कि आपकी गलती जितनी गंभीर होगी ना, आपको एहसास उतना गहरा होगा। जितना ज्यादा गलती करेंगे ना, उतने ज्यादा गहरा एहसास हो जाएगा, फिर आप कभी वापस नहीं जाओगे उस चीज। आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल यही जर्नी तय की है, एकदम ब्लैक से एकदम व्हाइट पर आ गए। ये या जर्नी तो नहीं की है, लेकिन दूसरों के अनुभव से सीखे हैं। जो दूसरों के अनुभव आसपास से सीखा है। परिवार के जो अनुभव है उससे। सर, ब्लैक ब्लैक जी। से तो स्टार्ट हुए, व्हाइट नहीं हुए हैं अभी तक, व्हाइट होना है आगे। अगर 200 की 300 कोर्स करेंगे, धीरे धीरे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद थोड़ा व्हाइट की तरफ आएंगे। कोई बात नहीं, आपको जो प्राणायाम सिखाया है ना, ब्रीदिंग, उसको करते रहिए, यस सर। और सांसों को और गहरा करते चले जाइए। आपका ना बिहेवियरल चेंज अपने आप होने लगेगा। दो तीन चीजें और हैं कि जैसे एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको ये बोल बता सकता हूँ कि जब आप स्ट्रैटेजी तय कर लेते हो ना, कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे डील करना है, उस सिचुएशन में मुझे कैसे डील करना है, और आप प्रायोरिटी फिक्स कर लेते हो कि जैसे अभी लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है उसका आपने स्ट्रैटेजी बनाया, अब वो सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपको कैसे डील करना है उसको। अगर आपने पहले से माइंड में उसको रिपीट कर लिया, माइंड में बार 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 उसको रिवाइज कर लिया, तब जब वो सिचुएशन आएगी ना, तो आप देखोगे कि आप वहां पर वैसे रिएक्ट नहीं करोगे जैसे आप पहले करते थे। एक बार विजुअलाइज करके आपको देख लेना है कि ये चीज अगर मेरे सामने आती है तो मुझे कैसे इसको डील करना है। याद रखिएगा, किसी चीज का विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला। किसी भी चीज को अगर आप विरोध करेंगे नहीं मिलेगा कुछ। इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए, विरोध मत कीजिए। ठीक है। किसी भी बुरी आदत या नेगेटिव एनर्जी को कभी भी आप हरा नहीं सकते, क्योंकि वो भी नेचर है। नेगेटिव एनर्जी को हराया नहीं जा सकता, उसको बस अवॉइड किया जा सकता है। हो सकता है कुछ देर के लिए आप उसको दबा दो, नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं होती, वो बस किसी कोने में जाकर दब जाती है और वापस से आती है।
इसीलिए जो कार्ल गुस्ताव जूंग थे, उन्होंने कहा था कि अपने भीतर के डार्कनेस को भी हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और डार्कनेस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने लाइट नेचर के साथ, क्योंकि हम सबके अंदर डार्कनेस है, तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हमारी परफेक्शन ही इसी में है कि हम जब दोनों को इंटीग्रेट कर देते तो हम परफेक्ट। प्रकृति ने सत रज तम तीनों से बनाया ना, सात्विक राजसिक तामसिक, है ना। सात्विक क्या है? गुड। राजसिक क्या है? इन दोनों के बीच में। और तामसिक क्या है? बैड। राजसी वाला इन दोनों के बीच में है, यानी एक आम इंसान। सात्विक साधु को देख लो और तामसिक गुंडों को देख लो, इन दोनों के बीच में एक आदमी है, जो कि हम हैं, आम आदमी। चलिए, अब प्रैक्टिस के बाद, जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो खाना पीना नहाना ये सब कम से कम आधे घंटे के लिए हमको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। योग की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद खाना पीना नहाना ये आधे घंटे के लिए हमको अवॉइड करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सबों को पता होना चाहिए, लाइफ के किसी भी जगह पर अप्लाई कीजिएगा, आपको फायदा होगा। इसको कहते हैं रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी। नोट माय पॉइंट, इस बात को जिंदगी भर याद रखिएगा। अगर आपने बस इस चीज को फॉलो कर लिया, और कोई चीज फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ड्यूरेशन। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ड्यूरेशन। अगर आपने कंसिस्टेंटली किसी चीज पर काम किया, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द ड्यूरेशन। हो सकता है आज आपने 1 घंटा किया और कल आप 20 मिनट ही कर पाए, क्योंकि एनर्जी लेवल कम होंगी। कभी कभी हमारी एनर्जी लेवल ज्यादा होती है, कभी कभी कम होती है, और शुरुआत में तो सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि आखिर कितना कर पाएंगे हम। तो शुरुआत के तो कुछ दिन बस ऑब्जर्वेशन में निकल जाते हैं कि हम एक्चुअली में कितना करने में पॉसिबल हमारे, तो कितना हमारे लिए अचीवेबल है, कितना हमारे लिए रियलिस्टिक है। लेकिन एक बार जब हम ये कर जाते हैं, तो हमको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। अगर आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखी, आप लिख लीजिए, 110% श्योर कि आप मोमेंटम में आ जाएंगे। और एक बार मोमेंटम में अगर आप आ गए, तो ये बात तय है कि किसी भी चीज को जिस पर आप काम कर रहे हो उसको आप मास्टरी अचीव कर लेंगे। एक किताब है मास्टरी नाम की, रॉबर्ट ग्रीन की, उसको कभी आप पढ़िएगा। उसमें भी यही चीज बताई गई है कि पहले हम अप्रेंटिसशिप के फेज में होते हैं, लेकिन अप्रेंटिसशिप के फेज में ही ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होता। एक चीज और है कि स्मूथ इज स्लो। जो बहुत स्मूथ काम करता है वो थोड़ा स्लो काम करता है, और वही स्लो ग्रोथ धीरे 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 कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ एक्सेलरेट हो जाता है। ऐसा समझिए कि हर तीसरे महीने हमारा जो काम है वो 20 से 30% फास्टर हो जाता है। तो अगर आप 25% भी मीडियन लेकर चलें, तो आप खुद सोचे कि हर 3 महीने पर अगर 25% ग्रोथ हो रहा है, तो एक साल में कितना परसेंट ग्रोथ होगा? कोई मैथमेटिशियन यहाँ पर है जो इस तरह से बता, कैलकुलेट करके बता सके? क्योंकि मेरा उतना अच्छा नहीं है। कोई बता सकता है? एनीवन? हम्म। 100%.
नहीं नहीं, 25% के बाद फिर उस 25% का भी तो कंपाउंडिंग 25% होता है ना। हाँ सुमन जी, आप अनम्यूट सुमन करो पहले। माइक म्यूट है। हाँ, वही मैं बोल रहा था सर। वो कंपाउंडिंग के वजह से वो 25 बढ़ते जाएगा, 200 समथिंग हो जाएगा, 100 वाला। तो आप समझ जाओ, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो अराउंड 200-300 परसेंटेज आपका ग्रोथ होगा, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर उस हिसाब से होगा। मैंने जब लिखना शुरू किया था, क्योंकि कॉलेज लाइफ के बाद बहुत साल बाद मैंने लिखना शुरू किया था, तो मैं, मेरे हाथ कांपते थे, मैं मुश्किल से 4-5 पेज लिख पाता था 1 घंटे में। लेकिन अब तो गिनती ही नहीं है, अब तो तेजी से बढ़ता चला जा रहा है सब कुछ, वो सिर्फ 1 साल के भीतर। तो ये हम सबके साथ होता है। अगर आपको किसी भी चीज को मास्टरी करनी है ना, बस कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन ड्यूरेशन, इस प्रिंसिपल को याद रखिएगा। मोमेंटम आएगा और वो एक्सेलरेट करके आपको आपके अल्टीमेट प्रोग्रेस तक ले जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू वेरी मच। जिनको जाना है वो जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।